Okay, so namaste Hello, everyone. namaste. Hi, hello. We are going to start our session today now. So I will start with one example. आज का ही example, सुबह का. आज when I got up in the morning, first thing I see, there's a message on my phone, and this one of my friend who was the speaker today as a guest speaker, and he messages me that due to some unavoidable problem, he won't be able to take the session. And what must be my immediate reaction? I was not prepared for today. आज मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी कि मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, तो I will relax today because my friend will be taking the whole session and मैं आराम से बैठ के मैं भी enjoy करूँगी session. तो ये मैं बड़ी relax थी सुबह से. And suddenly he writes this message, and the moment I read this, gone. I said, how could he do that? How irresponsible of him. So ये जो मेरे जो negative thoughts आए उस समय, first immediate reaction was negative thoughts. So I created those negative thoughts toward that person. Then 2 minutes I took a deep breaths. I thought, no, that person is quite responsible. He is a very sincere person, and if he has written something, must be really definitely some problem. पर मैंने जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करे उस बंदे के लिए, तो मेरे अपने अंदर मैंने क्या किया, एक हिंसक वृत्ति जागृत करी. इवन क्रिएटिंग दोज नेगेटिव थॉट्स, आई क्रिएटेड अ हिंसा. सो व्हाट इज हिंसा या व्हाट इज अहिंसा? So this we are going to talk today. So today's session, that this is the first of Patanjali's yamas. It is the first ethical and moral guidelines towards the society that we should be following, ahimsa. So what exactly is the meaning of ahimsa? It says, जैसे सबको स्वयं को जैसे हम अपने आप से कैसे ट्रीट करते हैं, सभी को हम वैसे ही ट्रीट करें. जैसे मन वचन कर्म से हिंसा ना करना अहिंसा माना गया है. लेकिन अहिंसा का इससे भी व्यापक अर्थ क्या है? सब स्वयं के साथ अन्याय या हिंसा करना भी एक अपराध मानते हैं. हम अपने आप के लिए भी क्रिटिकल हो जाए, हम अपने आप के लिए अपने आप पे भी गुस्सा हो जाए, हमने कोई गलती करी, हम उसको माफ ना कर पाए, दैट इज ऑल्सो हिंसा. क्रोध करना, ज्यादा लोभ मोह को पालना, अटैचमेंट रखना, दिस कम्स ऑल अंडर हिंसा. शरीर को कष्ट देना, लाइक बहुत दिनों तक लोग उपवास करते हैं, यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट दैट, बट स्टिल यू आर डूइंग द फास्टिंग एंड यू आर डूइंग द व्रत. इट्स ऑल्सो हिंसा टुवर्ड्स आवर बॉडी. So ahimsa is not only causing pain to others. What is ahimsa? Ahimsa is we should not cause pain to others. दूसरों को कोई तकलीफ ना देना ही अहिंसा है. But हम ये भी कहते हैं कि हिंसा क्या है? हिंसा यानी किसी को मारना, वायलेंट होना, फिजिकली वायलेंट होना, या किलिंग सम लिविंग बीइंग, लाइक वी किल non-veg खाते हैं तो we kill someone, or murder की तो I am not going to talk about, but this all these things, physical violence, we think it's a hinsa, it comes under violence, but that is not only violence. Sometimes योग में कहते हैं कि that violence is still acceptable, but the violence created by your thoughts, by your words, by your actions is more harmful. So when we think here about something wrong, about something negative for others, for ourselves, is the biggest himsa towards everyone, towards ourselves. कटु वचन बोलना, दिल दुखाना, कष्ट देना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है. अब सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? लिटिल डिफिकल्ट सूत्र. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट सिंपली, डोंट गो डीप इनटू दिस. Just I'd like to talk about sutras, so I will definitely mention this. Vitarka hinsa daya, krita karita anumodita, lobha krodha moha purvaka, mrudu madhyadi matrata, dukha jnana ananta phala, iti pratipaksha bhavana. In short, I will tell about this. It says when the negative thoughts come in our mind, so we become a little violent. I don't say physically violent, but those violent thoughts come. Either we ourselves do that action, or we approve that action if someone else is doing, or unknowingly we just
व्हाट से हमने ध्यान नहीं देते हैं, जैसे वी जस्ट इग्नोर द पर्सन, हमें पता है दैट पर्सन इज डूइंग सम एक्शन, वायलेंट एक्शन, और वो किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, और हम उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. दैट ऑल्सो इज यूर गिविंग अप्रूवल अननोइंगली टुवर्ड्स दिस हिंसा दैट पर्सन इज डूइंग. तो उन्होंने कहा है कि इसका इंटेंसिटी कुछ भी हो सकता है, मृदु, मध्य, आदि या अत्याधि या मृदु. So it varies from mild, medium और highly intense. तो जो आप जो violence करते हो उसके this variety of forms हो सकते हैं. And this pain which we cause for to others 3 वजह से होता है. Either आप बहुत गुस्से में हो, या आप में कुछ मोह है, या कुछ ग्रीड है, या आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी चीज से, और जो अटैचमेंट है, जिस बंदे से अटैचमेंट है उसने आपको कुछ कर दिया, उसके एक्शन से आपको गुस्सा आ गया तो आप हिंसा करते हो, या आपको कुछ ग्रीड है, मोह है, वो चीज आपको नहीं मिली, देन दैट वायलेंस दैट क्रिएट इन योर माइंड और इन योर एक्शन, या गुस्सा आना. सिंपल, ट्रैफिक में जा रहे हैं हम, किस कोई हमें ही इज नॉट गिविंग अस द वे, या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के बाहर निकल रहा है कोई, तो हम उस पे गुस्सा होते हैं. आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स. सो दिस इज व्हाट हिंसा, इट ऑल कम्स अंडर हिंसा. एंड हाउ इफ वी फॉलो दिस अहिंसा ना, तो क्या होता है, अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निध्यो वैराग्य वैर त्याग. ये भी उसका इलाज भी बताया है महर्षि पतंजलि ने, कि अगर आप ये फॉलो करते हैं अहिंसा, तो आपके आसपास वाले जो है दे बिकम वेरी काम, दे बिकम वेरी पीसफुल, दो दे मे हैव दोस टेंडेंसी, बट अराउंड यू, एज सून एज यू दे कम अराउंड यू, दे बिकम वेरी शांत, वेरी काम. जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें गुस्से वाला थॉट कभी आता ही नहीं है, हम भगवान के पास जाते हैं या हम बैठते हैं, तो बिकॉज you know that there the atmosphere is so शांत, so peaceful, वहां पे सब अहिंसा का वातावरण है, तो हमारे हिंसक थॉट्स आ ही नहीं सकते. सो इफ वी आर फॉलोइंग अहिंसा रियली रिलीजियसली ना, सो पीपल अराउंड अस आल्सो बिकम दैट वे. ना हाउ कुड वी प्रैक्टिस अहिंसा? फर्स्ट, योग कहता है सबसे पहले कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही बनते हैं. सो यू हैव टू ईट प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट. I know it is very difficult for few people who eat non-vegetarian diet, but then this is what has been written in yoga. To nourish and love our body fully, we should know and understand what we are eating and where it comes from. So nourish that body with fresh, healthy, nutritious, wholesome, organic, plant-based food. Treat your body as a holy place and don't give it junk food or unhealthy food. And it also applies that we should not directly, indirectly kill any living being for our satisfaction. But if it is, no matter if you try, it doesn't happen, so you have to eat certain food which you don't cut down on. So don't feel guilty also, because guilt we feel jo hum karte hain, that is also comes under himsa. So we should not even feel guilty. So otherwise वो भी एक वायलेंस हो जाता है. And the moment we start feeling this हिंसक प्रवृत्ति जब हमारे मन में भी आती है, you start releasing those hormones which are not good for you, the stress level, and the whole blood becomes it start releasing those enzymes and what which will create disease in our body. So second is the cultivate the seeds of positive and loving thoughts, which is very necessary. Love ourselves, वो जो self love का मैंने जो बताया था आपको, वो बहुत जरूरी है, because then only it will, if you love yourself, you can love others. स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी करो, अपने आप को पहचानो, जानो, कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, that will give you good thoughts, that will keep the thoughts very clean and good. Trying to be environmental friendly, planting trees, care for mother nature or mother earth or our ecosystem, it helps. And being mindful while using all natural resources. Pani ko zyada waste nahi karna, even that comes under violence. I did not know about this, but if you are misusing the natural resources, it comes under violence or hinsa. Then opting for eggs which are केज फ्री, या जो हेन्स को केज में रख के उसको कल्टीवेट करते हैं और उनके एग्स जो हम खाते हैं, that also comes under himsa. Then we should be eating organic food,
which is actually very difficult for us to know whether really it is organic or not. हमारे यहाँ especially in India it becomes very difficult. ऋषियों का मानना है कि जितने भी गलत कार्य है उन सब का मूल जो है हिंसा में है, और जितने भी उत्तम कार्य है सबका मूल जो है अहिंसा में है. सो सत्य आदि जितने भी हमारे यम्स के बाकी के जो स्टेप्स हैं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, सबको का रिलेशन अहिंसा से है. तो आज अगर हम अहिंसा को ठीक से समझ लेते हैं तो when we do the next steps of yamas it becomes easy, because if you are not following अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जो हम करेंगे उसका कोई मायने नहीं रखेगा. तो we should really think of following this and reflect on this thought that our thoughts, words and actions, we are creating hell or heaven daily for ourselves and for others. So with this thought, we will start doing our pranayama and our meditation. So very, very important ahimsa. I feel I should be able to follow this really. Okay, आंखें बंद, प्राणायाम के लिए तैयार. Deep breaths. हम अनुलोम विलोम के 9 राउंड्स करेंगे, उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम के 5 राउंड्स करेंगे. पहले आंखें बंद करके सिंपल श्वास लीजिए सहज भाव से. Then I will give you counts. Now take the position. Close your right nostril with your thumb. Inhale from your left. In, 2, 3, 4. Close your left. Open your right. Out, 2, 3, 4. In from your left. 2, 3, 4. Open your left. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 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 2, 3. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. 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 In, 2, 3, out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. Last round. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. And relax. गहरी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए. हमेशा 2 प्राणायाम के बीच में गैप रहना चाहिए. इमीडिएटली नहीं शुरू करना चाहिए कभी भी. आंखें बंद रखिए. डोंट लेट द एनर्जी गो आउट. नाउ वी विल डू भ्रामरी प्राणायाम. Close your eyes with your first finger. Keep your second finger on the nostril. Third finger, ring finger above the lips. Small finger on the chin and the thumbs into your ears. सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालेंगे. 5 बार करेंगे. इनहेल,
आंखें बंद किए, श्वासों के ध्यान, मन ही मन we will invite our God, our Lord, our Gurus, Adi Guru, Adi Yogi, Lord Shiva, Mahavatar Babaji, and all the spiritual beings, all the gods and the Gurus on which we have complete faith, which you want the blessings of. We will just request them to give their blessings and the energy and help us to meditate better. मैं म्यूजिक शुरू करूंगी, एक जन कोई जस्ट थम्स अप कर देना अगर म्यूजिक का वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो थम्स अप, वॉल्यूम कम है तो थम्स डाउन कर देना। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। Kamal Didi, you can stop the pranayam now. Yes. एक ओंकार सतनाम Focus on your breathing, आत्मविश्वास और जातविश्वास पे अपना ध्यान। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। साक्षी भाव से अपने श्वासों को देखना है सतनाम और साक्षी भाव से अपने विचारों को भी देखना है। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास अनुभव करिए। जुगाद सच At the tip of your nostrils, feel the sensation of the air. होसी भी सच। विचारों को भी आता जाता देखिए। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं अहिंसा पालने वाले को, जो भी हम अहिंसा पालन करते हैं उसके बाद उनके शरीर में किसी भी प्रकार का वैर द्वेष कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ अपने लिए प्रेम और दूसरों के लिए भी प्रेम की भावना रहती है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच
नानक होसी भी सच। The more I love myself, the more I give it to others. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। By controlling and focusing on our breath, we can control our prana. एक सतनाम Prana is a cosmic force without which nothing moves or functions. निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्वास ही हमारा गुरु है। एक ओंकार सतनाम Treat your breath with respect. निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्वास के द्वारा ही हम अपने आत्मा तक परमात्मा तक पहुंच सकते हैं. एक ओंकार It is a bridge between our body, our mind, करता and our पुरख own self. निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। We are all self-sufficient and we can help our own self. Nobody can help us. सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हमारे विश्वास से ही हमारा साथी है, उस पर पूरा विश्वास रखिए. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक As you होसी inhale, भी you energize your सच। body. As you exhale, you relax your body. एक ओंकार सतनाम विचारों को आता जाता करता देखिए, पुरख उन्हें पकड़ के मत रखिए। निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख Focus on your breath. More your body relaxes. Your mind becomes peaceful. मन शांत रहता है. गुर प्रसाद Relaxed. जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। Just drop your ego. अपने अहंकार को ओंकार छोड़ दीजिए. सतनाम करता मैं की पुरख वृत्ति को त्याग दीजिए. निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर Last 10 minutes. प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी हमारे सब दुखों की जड़ मैं है. छोड़ दें. सुखी सुख है. ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच आत्मविश्वास और जाति विश्वास से अपना नाता बना के रखिए. सच। एक भी श्वास को जाने मत दीजिए अपने नजरों के सामने से. आपके अवेयरनेस से गुजरता हुआ सांस अंदर जाती है और आपके अवेयरनेस से होती हुई सांस बाहर आती है. अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच Surrender जुगाद yourself सच to the God, है भी to your Guru. सच नानक होसी भी सच। एक
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर Change your negative thoughts into positive thoughts. अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद साइलेंस में हमें रहना सीखना है। सच है भी सच शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। भी सच। Last 5 minutes. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं जितना शांत रहेंगे, जितना मन को शांत रखेंगे, उतना ही हम अपने आप को ज्यादा सुन सकते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच तो जब हमारी आवाज अंदर से आती है, वो हम भगवान की आवाज कहते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जहाँ शांति है भगवान। Silence is God. सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं Last 2 minutes. गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच Stay in the attitude of gratitude. भी सच। एक ओंकार सतनाम करता We will say affirmations to ourselves. निर्भव I am happy. I am healthy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me. Also for whatever you have not given me. Stay in this state for some time. आंखें बंद रखें। 30 seconds more. हर छोटी चीज के लिए आभारी रहिए भगवान के। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद Now rub your palms. जप आद सच Keep them on your eyes. है भी सच नानक With a smile, open your eyes. सच।
Thank you, everyone. Thank you. Hope you liked it. Thank you, Archu. Yeah, Thank you, Archana. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye and have a nice day.